Hello students. In our last class, we had discussed the textbook and syllabus prescribed for your class. Today, I'm again here to discuss the first lesson of your English literature book. So get ready for it. Keep a notebook and a pen with yourself so that you could note down the hard words and their meanings or any other important points. If you like this video, press the like button and give your feedback in the comment section. Subscribe our channel for more updates in this regard. Thank you. Dear students, have you ever heard the people saying, "Oh God, thank God, God knows," or "God bless you"? All these expressions shows man's belief in God. Today we are going to read the story A Letter to God, written by G.L. Fuentes. This is the first chapter of your literature book. This story is all about having unquestionable belief in God. In this story, there is a farmer, Lencho, who supports his family needs through farming. When his crops becomes ready for harvesting, it is struck, ruined by the hailstorm. Seeing no hope how to run the family for the whole year, he writes a letter to God and asks 100 pesos so that they would not starve. इस कहानी में एक फार्मर है जो खेती करके अपने परिवार को चलाता है। एक बार जब उसकी फसल तैयार होती है तभी हेल स्टॉर्म्स होता है, ओलावृष्टि कह सकते हैं इसे, पत्थर गिरते हैं जो छोटे छोटे आइस बॉल्स के रूप में गिरते हैं और उसकी फसल जो है वो ruined हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। Seeing no hope how to run the family for the whole year, वो एक लेटर लिखता है गॉड के पास और गॉड से 100 पेसोस, पेसो करेंसी है, वो 100 पेसोस की मांग करता है ताकि वो अपनी फैमिली को चला सके और वो लोग भूखे ना मरे। Does his letter read God? Does his letter reach God? Does God send him the money? To know this, let us read the story now in details. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, ये जो हाउस है, ये जो घर है किसका है? लेंचो का है। The only one in the entire valley, उस पूरे complete valley में this house was the only one, ये जो घर था अकेला था। Sat on the crest of a low hill, ये एक छोटे से पहाड़ी के क्रेस्ट पे था। क्रेस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ आप देख सकते हैं टॉप ऑफ अ हिल। ये जो घर बना हुआ था टॉप ऑफ द हिल पे बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई पर से यानी क्रेस्ट से जहां पर उसका घर स्थित था वहां से कोई भी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसकी फसल पक के तैयार हो चुकी थी, उस खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड a good harvest.
अब उसकी फसल देखने में कैसी लग रही थी, जो सीन है इसको इमेजिन करके देखिए। जो राइप कॉर्न की एक शीट सी है और बीच बीच में फ्लावर्स हैं, जो एक जिस तरह से किसी शीट पर बना हुआ डॉट जो बिंदु बिंदु का पैटर्न दिखता है, ठीक वैसे ही राइप कॉर्न के कलर की एक शीट है जिसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो डॉट की तरह दिख रहे हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ऐसा देख के लगता है कि इस बार बहुत अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट अ शॉर, कम से कम शॉर की। शॉर you must know the meaning of shower, that is spray of rain, light rain, downpour rain, good rain। एक अच्छी बारिश की जरूरत थी उस समय फसल को। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately means closely। लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing else, सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया था, but see the sky towards the northeast। सिर्फ उसने क्या किया था, केवल वो स्काई को towards the northeast देखता रहा था, उसको निहारता रहा था, बस उसी काम में बिजी रहा था। Now we are really going to get some water, woman, he addresses his wife। वो अपनी वाइफ को बोलता है, now we are really going to get some water। वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि बारिश होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, supper means a food। She replied, yes, God willing। वो बोलती है, हाँ, ईश्वर की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। जो उसके बड़े बेटे थे, उसका एक अच्छा खासा परिवार था। जो बेटे बड़े थे, ग्रोन अप थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि ये सब अपने अपने काम में बिजी थे। कब तक, जब तक कि वुमेन ने बुलाया उन्हें कम फॉर डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। ड्यूरिंग द मील, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आसमान में बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन से कंपेयर किया गया है बादलों के उस झुंड को, यानी काफी बड़े बड़े बादल थे। दे कुड बी सीन अप्रोचिंग, उन्हें आते हुए देखा जा सकता था। अप्रोचिंग, reach, they had gathered, collected there। The air was fresh and sweet। हवा जो थी वो बहुत ताजी थी और स्वीट, अच्छी लग रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। Man means लेंचो। लेंचो बाहर गया किसी और वजह से नहीं, only to have pleasure of feeling the rain on his body। अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को गिरता हुआ अनुभव करने के लिए वो बाहर गया। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky." जब वो वापस लौटा, वो एक्सक्लेम करता है, बहुत ही एक्साइटेड है, बोलता है, "These aren't raindrops falling from the sky." ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, they are new coins। ये क्या है? ये सिक्के हैं, ये पैसे हैं। The big drops are 10 cent, sorry। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। वो बड़े बूंदों को 10 cent is a unit,
a monetary unit equal to 1/100 of a dollar. तो कहता है कि ये बड़े वाले जो ड्रॉप्स है वो सेंट हैं और छोटे वाले जो हैं वो 5 हैं. 10 सेंट हैं बड़े वाले और छोटे वाले 5 सेंट हैं. मतलब कि वो एक्सपेक्ट करता है कि ये अनाज जो मार्केट में बिकेगा तो बहुत से पैसे मिलने वाले हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ये उस सीन को दिखा रहा है जब वो क्वाइट सेटिस्फाइड है. वो देख रहा है फील्ड को जिसमें राइप कॉर्न लगे हुए हैं, उसमें फ्लावर्स हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश नुमा जो कर्टन ऑफ रेन है, यानी कि बारिश का चारों तरफ से एक तरह से शीट है जो उन फसल पर ड्रेप्ड हो गई है. ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, जो फील्ड को कवर किए हुए. ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी फील्ड बारिश की चादर में लिपटी हुई है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. अचानक क्या होने लगता है, बहुत ही तेज हवा चलने लगती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. होता क्या है कि हवा के साथ साथ बारिश के साथ साथ बड़े बड़े लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स दैट स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन. तो बड़े बड़े बॉल ऑफ आइस, ओले जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. देखने में ये जो हेल स्टोन्स थे देखने में बिल्कुल सिल्वर कॉइन से लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. बच्चे जो बाहर खुले में थे, रेन को एंजॉय कर रहे थे, they ran out to collect the frozen pearls. ये frozen pearls, this is the metaphor for those hailstones. It is really getting bad now, exclaimed the man. थोड़ी देर में अब लेंचो परेशान हो जाता है और बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा. आई होप इट पासेस क्विकली. वो ऐसा सोचता है कि ये जल्दी से बीत जाए, यानी हेल स्टोन्स जल्दी बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन हुआ ऐसा नहीं. वो सोचता ही रहा बट ये जल्दी नहीं गया. फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. हर तरफ कॉर्नफील्ड, हिल साइड, पूरी की पूरी वैली में क्या था, जो आइस बॉल्स थे वो इकट्ठे हो गए थे और फील्ड पूरी पूरी वाइट दिख रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट से पटी हुई हो, पूरी कवर्ड हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो फसल थी, जो मक्के की फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, ruined हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फ्लावर जो डॉट की तरह उस खेत में दिख रहे थे वो भी प्लांट्स से गायब थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो का सोल पूरी तरह से सैडनेस से भर गया, बहुत उदास था वो. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब स्टॉर्म चला गया वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया. एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. बारिश और हेलस्टॉर्म के जाने के बाद वो अपने बेटों को बताता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स मीन्स, लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है जो फसल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, और यहाँ प्लेग उनके झुंड के लिए बोला गया है. तो अगर उन इंसेक्ट्स का अटैक भी होता तो कहीं ना कहीं जो फसल थी इतनी बर्बाद नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर लेफ्ट रहता. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग. जबकि हेल की वजह से कुछ नहीं बचा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न.
इस बार हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो जो रात थी लेंचो के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत ही सोरोफुल थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो कहना चाहता है कि हमने जो भी किया वो दैट वॉज फॉर नथिंग, उसके बदले में कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो होपलेस होने लगता है कि हम लोग इस साल भूखे रहेंगे, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन सबके दिलों में, सबके मन में, सबके किनके, who lived in that solitary house, जो उस इकलौते घर में रहते थे, in the middle of the valley, यानी पूरे परिवार के सदस्यों के मन में there was a single hope, एक ही होप था, क्या, help from God, कि गॉड वुड हेल्प देम। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचू अपने परिवार को कंसोल करता है, उनको अपसेट होने से मना करता है और बताता है कि हालांकि ये देखने में टोटल लॉस है, ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस है, स्टिल याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, ईश्वर किसी को भी भूखे मरने नहीं देता, सबके पेट भरने का इंतजाम ईश्वर कर ही देता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात वो ईश्वर की हेल्प के बारे में सोचता रहा। whose eyes as he had been instructed, वो ईश्वर जिसकी आंखें see everything, सब कुछ देखती हैं। even what is deep in one's conscience, अगर किसी के conscience में भी an inner sense of right or wrong, conscience means an inner sense of right and wrong, किसी के अंतर्मन में जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, इवन ईश्वर वहां भी देख रहा होता है। और ऐसा उसे एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया जाता रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पर एक कंपैरिजन है मैन की ऑक्स से। वो किस मीन्स में है, दैट इज फॉर डूइंग हार्ड लेबर। तो लेंचो को ऑक्स कहा गया यहाँ। वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो हालांकि जानवरों की तरह काम किया करता था फील्ड्स में, लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखते हैं, यानी लिखना पढ़ना जानता था, वो लिटरेट था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अगले संडे सुबह होती डे ब्रेक के साथ उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो लेकर खुद गया टाउन, शहर, एंड प्लेस इन द मेल, और वहां जाके मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये जो लेटर था गॉड को लिखा गया था। गॉड, he wrote, उसने लिखा, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। उसने लिखा था कि ईश्वर अगर आपने हमारी मदद नहीं की, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again। उसने कहा कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो अपने फील्ड को वापस से सो कर सके। सोना मीन बोना, फिर से बुआई का काम कर सके, इसलिए उसे 100 पैसों की जरूरत है। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि क्रॉप फिर से तैयार न हो, इसके तब तक के अपने खर्च के लिए भी, तब तक के लिविंग के लिए भी ये पैसे चाहिए थे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने आगे उसने और भी सारे डिटेल्स लिखे हुए थे।
हेलस्टोन ने क्या किया, क्या नहीं किया. He wrote to God on the envelope. Envelope पे उसने क्या लिखा? To God. Put the letter inside and still troubled. उसने लेटर को अंदर रखा, वो अब भी परेशान था. Went to town. वहां से वो टाउन चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पे एक स्टाम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, गिरा दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और साथ में वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वहाँ असिस्ट करता था. Went to his boss. वो अपने बॉस के पास गया और बहुत हंसा. He laughed heartily and showed, बहुत ही हंसते हुए उसने क्या किया? Showed him the letter to God. ये जो चिट्ठी थी जो ईश्वर के लिए लिखी गई थी उसे दिखाया, यानी अपने बॉस को दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. एक पोस्टमैन के करियर के रूप में उसने कभी भी गॉड का एड्रेस नहीं जाना था, उसे नहीं पता था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो. पोस्ट मास्टर जो था वो एक फैट और एमिएबल, फ्रेंडली, सोशल फेलो था, प्लीजेंट फेलो था. एमिएबल मीन्स सोशल, फ्रेंडली, प्लीजेंट. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो भी साथ में हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. लेकिन अचानक से, बहुत जल्द, बहुत तेजी से, ही टर्न सीरियस, वो बहुत ही गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ. उसने लेटर को डेस्क पे रखा और उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God, वो एक्सक्लेम करता है कि इतना विश्वास पोस्टमास्टर कमेंट करता है, What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश कि मैं भी इस इंसान का भरोसा पा लेता जिसने इस लेटर को लिखा. Starting up a correspondence with God. वो बहुत सरप्राइज्ड है कि इस बंदे ने भगवान के साथ, गॉड के साथ भी करस्पॉन्डेंस यानी एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स शुरू कर दिया. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. इस राइटर का फेथ जो है, भरोसा जो है, वो भगवान में बना रहे, इसलिए उसने क्या किया, उसके पास एक आइडिया था. आंसर द लेटर. वो आइडिया क्या था? लेटर को आंसर किया जाए. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट. जब उसने उसे खोला, यानी इट मीन्स हियर फॉर लेटर, जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, तब जाके ये प्रूव हो गया कि दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. इस लेटर को आंसर करने में उसे गुडविल से ज्यादा कुछ चाहिए. गुडविल दैट मीन्स कॉपरेशन, फीलिंग, कोऑपरेटिव फीलिंग और कोऑपरेटिव एटीट्यूड. ठीक है, गुडविल से ज्यादा जो एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है, उससे ज्यादा इंक और पेपर. कोऑपरेटिव एटीट्यूड, इंक और पेपर से ज्यादा भी उसे किसी चीज की जरूरत है. But he stuck to his resolution.
लेकिन उसने जो भी रिजोल्यूट कर लिया था, जो एक फर्म डिसीजन कर लिया था, उससे स्टक रहा, यानी उसको उसने आंसर करने का प्लान जो है वो छोड़ा नहीं, जबकि उसे पता था कि उसके लिए उसे इंक पेपर और कोऑपरेटिव एटीट्यूड के अलावा भी कुछ चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब उसके अलावा क्या चाहिए था? यू वुड हैव गेस्ड कि उसके अलावा चाहिए था दैट 100 pesos। तो उसने ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसने वहाँ काम करने वाले, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज से मनी को मांगा चैरिटी के नाम पे। He himself gave part of his salary। उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity। इस चैरिटी के एक्ट के लिए बहुत से उसके दोस्त थे जो obliged थे, thankful थे, यानी दोस्तों ने भी कुछ contribution किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos। एक साथ 100 pesos इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ जो आधे पैसे यानी 100 peso मांगे गए थे, 50 peso से थोड़ा सा लिटिल मोर ज़्यादा वो भेज पाया। ही वॉज एबल टू सेंड दैट ओनली। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। उसने एक एनवेलप में मनी को डाला। एड्रेस टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उस एनवेलप के साथ सिर्फ एक सिंगल वर्ड था, एज अ सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर वाली जगह, राइटर वाली जगह सिर्फ एक सिग्नेचर था और वो था गॉड। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it, मनी के साथ, a letter, एक लेटर भी रखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। उस लेटर में एक ही वर्ड था और वो क्या था? एज अ सिग्नेचर लिखा हुआ था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। अगले संडे लेंचो जो था वो थोड़ा जल्दी आया पोस्ट ऑफिस, टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। वो पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। He was expecting a reply from God, such was his faith। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब जबकि जब उसने लेटर जो रिप्लाई गॉड से एक्सपेक्ट कर रहा था उसके बारे में पूछा, तो पोस्टमैन ने, जिस पोस्टमैन को पहला लेटर मिला था, उसने हैंड ओवर किया। ही हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, टू लेंचो, वाइल द पोस्टमास्टर, जब ये पोस्टमास्टर क्या कर रहे थे उस समय? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। वो उस समय देख रहे थे कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन। यहाँ लेंचो की सेटिस्फैक्शन को वो देखना चाहते थे। सॉरी, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। वो खुद सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। ओके, कौन सा सेटिस्फैक्शन? बिकॉज ही हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। उन्होंने एक अच्छा कर्म किया। एक अच्छे काम को करने के बाद जो संतोष महसूस होता है, वो संतोष वो महसूस कर रहे थे, उस सुख का अनुभव कर रहे थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देखे जा रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने स्लाइटेस्ट, जरा भी, अ बिट, थोड़ी भी सरप्राइज, उसके सरप्राइज वो हुआ ही नहीं। He didn't show any surprise। बिल्कुल उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ on seeing the money, मनी को देख करके। Such was his confidence। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गॉड तो मनी भेजेंगे ही जब मैंने मांगा है तो ये जो कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री। उल्टा वो क्या किया? गुस्सा हो गया। When he counted the money, कब? जब उसने मनी को काउंट किया।
God could not have made a mistake. उसका विश्वास इतना था कि उसे लगा कि ईश्वर से तो कोई मिस्टेक हो नहीं सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही ईश्वर उसने जो रिक्वेस्ट किया है उसको डिनाई कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, उसको रिफ्यूज भी नहीं कर सकते. आप देख सकते हैं कि लेंचो को कितना विश्वास था गॉड पे कि ना तो उसे कम पैसे दे सकते हैं, जितना मांगा है उतना देंगे ही, और ना ही उसकी रिक्वेस्ट को वो बेकार जाने दे सकते हैं. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो जाता है विंडो के पास, काउंटर के पास जाता है, पेपर मांगता है एंड इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है. ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू करता है. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. ना गुस्सा है कि उसके ब्रोज में मूवमेंट है, फोल्ड्स आ रहे हैं उसके फोरहेड में. caused by the effort he had to make to express his idea. जो भी उसके मन में उस समय विचार आ रहे थे, उन आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो वो एफर्ट कर रहा था, जो वो कोशिश कर रहा था, वो कोशिश उसके माथे पे भी झलक रही थी. When he finished, जब उसने खत्म किया, यानी लेटर लिख चुका, he went to the window to buy a stamp which he licked. तो फिर वो वापस से काउंटर पे गया, विंडो पे गया और वहां पे उसने स्टैम्प लिया, उसको लिख किया एंड देन एफिक्स्ड, उसको चिपका दिया ऑन द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. उसने अपने एक जोर का वार किया, मुक्की का वार किया ऑन द एनवेलप, सो दैट कि जो स्टैम्प है वो वहां अच्छे से फिक्स हो जाए. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण लेटर मेल बॉक्स में जाता है, गिरता है, उसी क्षण पोस्टमास्टर वहां जाता है ओपन करने, उस लेटर को ओपन करने. इट सेड, लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी. उसमें से सिर्फ 70 पेसोज मुझे मिले हैं, यानी 100 की मैंने मांग की थी जिसमें से मुझे सिर्फ 70 मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे रेस्ट वाले यानी बाकी के पैसे भी सेंड कर दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन मुझे ये पैसे डायरेक्ट चाहिए, थ्रू द मेल नहीं चाहिए. पोस्ट ऑफिस होकर के ये पैसे नहीं आने चाहिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स हैं. अब ये बंच ऑफ क्रुक्स का क्या मतलब होता है? डिसऑनेस्ट पीपल, समवन हु यूजेस देयर पोजीशन और पावर फॉर देयर पर्सनल एडवांटेज, दे आर कॉल्ड बंच ऑफ क्रुक्स. तो लेंचो को ऐसा लगता है कि 100 पेसोज से 30 पेसोज पोस्ट ऑफिस वालों ने, जो कि बंच ऑफ क्रुक्स हैं, उन्होंने निकाल लिए हैं. और नीचे उसने अपना नाम लिख दिया लेंचो. सो चिल्ड्रन, डिड यू सी दैट what this story tried to teach you? Actually, there are so many morals of this story. The first moral is Lencho's faith in God. His faith made the money reach him. So we should learn from this story that God is always there for us. We must believe him. भले ही उसको पैसे गॉड ने नहीं दिए, बट उसे पैसे चाहिए थे और पैसे उसे मिल ही गए. There is another message also. The postmaster helped Lencho in spite of being unknown to him. पोस्टमास्टर और लेंचो के बीच में किसी भी तरह की बिलोंगिंगनेस नहीं थी. स्टिल पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प की. Therefore, we must be cooperative towards the needy people. We learn this thing also from this story. The next thing what we learn from this story is
In last paragraph, Lenchu concluded that people working in post office have stolen his money. This incident teaches us that we should never form an opinion without knowing the reality. तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही. अपने अगले क्लासेस में हम चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर होंगे और जो अगली एक्सरसाइजेज होंगी जो इस चैप्टर के बेस पर होंगी, हम उनके बारे में, अदर लैंग्वेज वर्क वगैरह जो है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.